Hello students, welcome to my YouTube channel. I am here with the topic that is application of Gauss law. As you know कि previous video में हमने application Gauss law की first application study की थी जिसमें हमने electric field find किया था due to uniformly charged wire by using Gauss law. Now my next application of Gauss law, that is the electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. तो हमने करना क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल कंसिडर करना है. लेट अस कंसिडर अ शेल which is uniformly charged. Let us consider that is a uniform charge distribution of positive charge over the surface of this shell, and I want to find the electric field intensity due to this uniformly charged spherical shell by using Gauss law. Then next the factors which I considering here are, that is the radius of that spherical shell, that is the center O. Now if you want to apply Gauss law, that you have to draw the Gaussian surface over this distribution, this charge. Okay, because Gauss law कब एप्लीकेबल है, जब हमारा चार्ज जो है वो एक Gaussian surface में, एक सिमेट्रिकल surface में enclosed है. ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि ये जो स्फीयर है हॉलो स्फीयर है, ठीक है जी, स्फेरिकल शेल कंसिडर किया है. शेल मींस ये हॉलो है, ठीक है, तो हॉलो है. तो मैंने इसके जो अलग अलग सरफेस कंसिडर किए, दैट कि इसका ये सरफेस तो एक ही है बट इसके रीजन जो है वो तीन बनते हैं. ये आउटर रीजन बनता है, आउटर रीजन. ये क्या है, हमारा एक सरफेस पे फाइंड करेंगे हम कि कितनी इंटेंसिटी आएगी. ये हमारा क्या है, इनर रीजन है, ठीक है, तो इनर एरिया है. तो मैंने करना क्या है, हमने ये अलग अलग पॉइंट कंसिडर करेंगे. एक बार आउटर रीजन में कितना आता है, एक बार सरफेस पे कितना आते हैं इंटेंसिटी, एक बार हम अपने इनर रीजन में कंसिडर करेंगे कि फाइंड करेंगे कितनी इंटेंसिटी आएगी. तो फर्स्टली हम फाइंड करते हैं एट अ पॉइंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड, एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल. तो हमने आउटसाइड एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है. फॉर दैट आई एम टेकिंग that is the Gaussian surface, and let us consider that is my point P, and firstly I consider the small area ds having area vector ds, and that is the intensity due to positive charge which is along the same direction. Okay, and let us consider the distance that OP, that is equal to small r. Now you have to find the intensity by using Gauss law, using Gauss law. Okay, Gauss law use करना है हमने, इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है यूजिंग Gauss law. Gauss law है क्या, E dot ds surface integral of electric field over the surface, closed surface, that is equal to q by epsilon naught. Now that is E dot ds है, that is E ds cos थीटा. इसमें हमें अलग अलग सरफेस कंसिडर नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि सफियर है, सफियर का एक ही सरफेस होता है, ठीक है. तो E ds cos लेना है एंगल. E and ds both are pointing in the same direction, so angle between them is 0, that is equal to q by epsilon naught. That means that will give you E ds q by epsilon naught. You can also write it as, that is E ds q by epsilon naught. And that what is ds, that is the surface, total surface area of sphere, which is equal to 4 pi r square, that is 4 pi that r square, because the radius of this outer surface, that is r, small r, that is equal to q by epsilon naught. Then E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. That is the electric field intensity at a point outside the surface, outside the spherical shell. एंड अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यही रिजल्ट हमारा आइसोलेटेड चार्ज का आता है. अगर हम सिंगल चार्ज के लिए इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आउटसाइड द शेल जो है इंटेंसिटी क्या आई है, उतनी ही आई है जितनी हमारे पास एक सिंगल चार्ज के लिए आती है. इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r square.
Okay, in vector form you can also write it as in vector form, that is r cap. Okay, if you consider the direction r cap here. Okay, that is the electric intensity at a point outside the shell. Second, if I consider at a point on the surface, मैंने अब क्या किया, सरफेस पे ले लिया पॉइंट, मतलब ये P point that will shift here. Okay, I am considering here that is my P dash, let's say that is P dash, and the distance that is R. Okay, equal to radius. Then the electric field intensity is given by, अगर मैं ये सारे स्टेप अप्लाई कर भी दूँ, देखो अब अगर मैं इसको लिखूँ E डॉट ds Q by epsilon naught, that is E ds cos, अगेन E इसी डायरेक्शन में है, इसका सरफेस एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इनका एंगल 0 ही आएगा, that is equal to Q by epsilon naught. Then you can write it as E ds Q by epsilon naught. Then that is E, what is the value of ds, that is again the total surface area, that is 4 pi capital R square is equal to Q by epsilon naught. Then E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square. Again the direction is same, so I am taking the same यूनिट वेक्टर, अलग से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी डायरेक्शन में है, तो आर कैप मैंने यहाँ पे शो कर दिया. ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज के अगर हम इंटेंसिटी पॉइंट पे फाइंड करते हैं जो सरफेस पे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड करती है चार्ज पे और डिस्टेंस पे, दैट इज अ कांस्टेंट. ओके, डायरेक्शन भी सेम आ रही है, तो चार्ज जो है वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि आउटसाइड रीजन के लिए भी इतना ही चार्ज था, सरफेस के लिए भी इतना ही चार्ज है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगा. तो इंस्टेड ऑफ r यू कैन टेक द कैपिटल R. ओके, तो आप सॉल्व भी करके दिखा सकते हो. अगर सॉल्व नहीं करना है तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर हमने पॉइंट लिया है सरफेस पे तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगा, तो इंस्टेड ऑफ स्मॉल r यू कैन राइट हियर दैट इज अ कैपिटल R. ओके, देन दैट इज द रिजल्ट ऑफ सरफेस चार्ज, सरफेस पे वो जो पॉइंट है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी का ये रिजल्ट है. Okay, then next is the third case, that is at a point inside the shell. Okay, तो मैंने शेल के इनसाइड पॉइंट लिया है, तो वहां पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो वहां पे इंटेंसिटी कितनी आएगी वो हम देखते हैं. तो इनसाइड में मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ एक पॉइंट कंसिडर कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पॉइंट कंसिडर किया, तो लेट अस कंसिडर ये इनर रीजन, तो मैं रब कर रही हूँ. ठीक है, तो मैंने यहाँ एक गॉसियन सरफेस लिया, तो यहाँ मैंने गॉसियन सरफेस लिया, तो यहाँ एरिया वेक्टर आएगा ds. ओके, बट यहाँ एरिया वेक्टर तो आ गया, बट अगर हम देखें तो हमारा इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है. अगर हम ध्यान से देखें, चार्ज तो आउटसाइड है. ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो थी फ्लक्स की, मैंने उसमें आपको बताया था, गॉस लॉ की फ्लक्स की वीडियो में, कि जो हमारा अगर कोई चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता है इनसाइड सरफेस के, तो उसके लिए जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0. ठीक है, और जो आउटसाइड चार्ज है वो कोई इफेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, दैट मीन क्या है कि अगर हम इनसाइड की बात करते हैं, ठीक है, इनसाइड क्या है, देयर इज नो चार्ज, Q इज इक्वल टू 0, देयरफॉर that E dot ds that is also equal to 0 because Q is 0, so that is equal to 0. अब ds तो एग्जिस्ट कर ही रहा है. ठीक है, तो E एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट मीन क्या है, दैट इज यू कैन से E इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ओके, तो हमने इस तरह से क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड कर ली. ठीक है जी. देन यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा. सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है. ठीक है, वैसे तो अगर आपको पूछा जाए तो ही एक्सप्रेस करो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस. ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे स्टेप्स बता देते हैं कि सिग्मा क्या है जी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया होता है हमारा. ठीक है जी, तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई r स्क्वायर है, तो Q जो है उसको आप सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर भी लिख सकते हो. ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ स्मॉल r यू विल टेक कैपिटल R, बिकॉज in this case capital R, and in this case if you want to express, then you can express it as okay, then that is E is equal to 1 upon 4 पाई epsilon naught. ठीक है, Q की जगह पे हम लिख देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस एज then that will give you E is equal to sigma by epsilon naught r cap, okay. That is the result of electric field, ठीक है जी। Then that is the topic of electric field intensity due to spherical shell. If you consider the solid sphere instead of shell, then देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएंगे अगर हम शेल की बजाय एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ही चेंजेस कर दूंगी तो आपको इजी हो जाएगा थोड़ा समझना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कंसिडर कर लिया जिसमें क्या है कि मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो सिमिलर हम इसमें करेंगे कि एक इनसाइड पॉइंट कंसिडर करेंगे, एक आउटसाइड लेंगे और एक ऑन द सरफेस लेंगे। तो लेट अस कंसिडर के मैंने अगर आउटसाइड पॉइंट लिया तो उसके लिए मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, दैट इज द पी पॉइंट विच इज आउटसाइड, दैट इज O, ठीक है। तो मैं ये थोड़े से चार्जेस रब कर रही हूँ, ठीक है। वैसे तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअल में थोड़ा सा आपको ये समझ आ जाएगा डायग्राम इसलिए। तो ये मैंने डिस्टेंस कंसिडर कर लिया R, ठीक है जी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ ds वेक्टर कंसिडर किया देन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आउटवर्ड आएगी। अगर मैं मतलब ये सारे फैक्टर देखूँ ध्यान से तो मेरे पास ये सारे वही बनते हैं जो हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के थे। दैट मीन अगर मैं एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल ले रही हूँ तो मेरे पास रिजल्ट एज इट इज यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप, क्योंकि वही सारे फैक्टर हैं हमारे पास। टोटल चार्ज क्यू है, आर कैप हमारा क्या है यूनिट वेक्टर है, आर क्या है डिस्टेंस है, तो ये सारा फैक्टर क्या आएगा सेम। दैट मीन जो वैल्यू इसकी आ रही है ये क्या आएगी, सेम आएगी। अगर मैं अपने पी पॉइंट को यहाँ की बजाय यहाँ ले आऊँ, पी पॉइंट मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। तो मैं ds वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, p डैश ले लूँ इसको, ये मैं r कंसिडर कर लूँ रेडियस। तो मेरे पास अगर मैं ऑन द एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस कंसिडर करूँ तो उसके लिए मेरा जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा, देखो सेम आएगा, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन दिस, देन इंस्टेड ऑफ r यू विल राइट कैपिटल R, ओके। देन क्या है रिजल्ट क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, ओके। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। अब डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस जो है वो सिर्फ यहाँ पड़ेगा जब हम इनसाइड लेंगे। तो कैसे होगा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके लिए मुझे ये पॉइंट्स जो है वो रब करने पड़ेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे शेल की बात नहीं कर रही, मैं स्फेरिकल बॉडी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है मेरा वो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है जी, दैट इज फॉर स्फेरिकल बॉडी, ओके। तो स्फेरिकल बॉडी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है जी। तो इनसाइड के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी दो पॉइंट्स में वो सेम है, ठीक है। तो मैं इनसाइड ले रही हूँ, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं अलग से एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। ये मेरा स्फीयर था, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज था। तो मैंने क्या किया, अब इसके इनसाइड कंसिडर कर लिया, ये इसका सेंटर था ना, तो इसके इनसाइड ये गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। तो इसका रेडियस जो है वो मैंने r डैश मान लिया, r प्राइम मान लिया, ठीक है जी। तो ये मेरा क्या है, ऑब्जर्वेशनल पॉइंट P है। तो यहाँ मेरा एरिया वेक्टर ds वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है विच इज अगेन आउटवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर, दैट इज O, ओके। तो अब क्या प्रॉब्लम आती है देखते हैं जी। इंटेंसिटी जो है उसको मैं लिख सकती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r डैश स्क्वायर, ठीक है। ये इंटेंसिटी हम लिख सकते हैं, बट क्यों नहीं लिखेंगे। अब उसके लिए क्या है कि यहाँ मेरी इंटेंसिटी जो है वो क्यू पे डिपेंड करती है। जो क्यू चार्ज है वो टोटल चार्ज है, बट इसके लिए इनसाइड के लिए मुझे चार्ज सिर्फ इस रीजन में कंसिडर करना है कितना है। तो मुझे क्यू चार्ज नहीं लेना है, तो मुझे करना क्या है, मुझे क्यू जो चार्ज जो इस इनसाइड जो ये जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया है तो उसी फैक्टर को लेके हम यहाँ पे चार्ज फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ मैंने कंसिडर कर लिया कि जो रो है मेरे पास क्या है, वो क्या है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। एंड दैट यू नो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती क्या है, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो दैट इज इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि स्फीयर जो है, ठीक है, उसका क्या है हमारे पास r है, ठीक है,
इसका रेडियस। तो ये हमारे पास इस स्फीयर के केस में हमारे पास ये आ रही है जी, इसकी यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ रही है, ठीक है जी। दैट मीन क्या है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है जी। तो अगर मैंने इतना वॉल्यूम कंसिडर किया, ठीक है जी, तो इतने वॉल्यूम के लिए कितना आएगा चार्ज, उसको हम इजी मेथड से फाइंड कर लेंगे कि अगर वॉल्यूम हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब आ रहा है, ठीक है, तो चार्ज कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है। अगर वॉल्यूम 1 आ जाएगा तो चार्ज कितना आएगा, क्यू बाय 4 पाई आर क्यूब आएगा। अगर वॉल्यूम कितना आएगा, इसको मैं वी डैश कंसिडर कर रही हूँ, अगर वी डैश वॉल्यूम आएगा तो चार्ज कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वी डैश। ऐसे ही फाइंड करेंगे यूनिटी मेथड से, ठीक है। यूनिटरी मेथड हमारा यही है कि अगर इतना वॉल्यूम है तो हमारे पास चार्ज क्यू है, अगर 1 वॉल्यूम है तो चार्ज कितना आएगा क्यू बाय दिस वॉल्यूम, अगर वी डैश वॉल्यूम हो जाए तो क्यू बाय दिस वॉल्यूम इंटू वी डैश। Now that is the amount of charge q dash, that is equal to q upon 4/3 pi r cube into v dash. V dash means 4/3 pi, instead of r I will take r dash because इस sphere का radius r dash है, तो 4/3 pi that will cancel out, तो q dash क्या आ गया, q by r cube into r dash cube, that is the amount of charge. You can use this value to find the intensity. Now intensity again, that is E dot ds, that is equal to q by epsilon naught, but instead of q you will take q dash, okay। then that is E dot ds, again dot product solve करके फिर हमारे पास वो एंगल 0 बन रहा है, तो उस स्टेप को मैं स्किप कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने E ds लिखा, that is q dash की वैल्यू q by r cube into r dash cube by epsilon naught, okay। that is E into ds की वैल्यू, इस ds की surface area, that is 4 pi r dash square, that is q upon r cube into r dash cube by epsilon। that will give you the result E is equal to q upon r cube into epsilon naught into 4 pi r dash square into r dash cube, that will cancel out, and that will give you the result 1 upon 4 pi epsilon naught. I can write it as, that is q by r cube into r dash, that is the electric field intensity, okay। that is electric field intensity जो हमारी कहाँ आई है, इनसाइड में आई है, कब, जब हमने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल बॉडी कंसिडर की है, मतलब अंदर से सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है, ठीक है जी। तो दैट इज अ डिफरेंस, ओके। तो ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है जी। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इसके केस में, शेल और चार्ज के केस में, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लेते हैं। देखो अगर मैंने ग्राफ बनाया, दैट इज ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड आर, ठीक है जी। अगर तो मैं ये बना रही हूँ शेल के लिए, पहले मैं शेल के लिए बना के दिखा रही हूँ आपको। तो हमने क्या पढ़ा कि शेल के इनसाइड कहाँ तक, जहाँ तक हमारा रेडियस नहीं आ जाता, लेट्स से दैट इज द रेडियस, जब तक हमारा रेडियस नहीं आ जाता तब तक इंटेंसिटी क्या रहती है, 0, क्योंकि हमारे पास क्या था, अंदर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ सरफेस पे है, तो सरफेस पे ही इंटेंसिटी आनी शुरू होती है। दैट मीन हमारा ग्राफ जो है वो यहाँ जो है इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। जैसे ही हम क्या करेंगे, ठीक है जी, जैसे ही हम यहाँ कोई इंटेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ क्या है, मैक्सिमम है। जैसे ही हम क्या है डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी जो है वो आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है ना, दैट्स वाई क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली है, तो ये डिक्रीज होती जाएगी। बट अगर हम बात करते हैं जी हमारे शेल की, सॉरी सफियर की, सॉलिड सफियर की, ठीक है, ये तो हमारा शेल का ग्राफ था। अगर हम सॉलिड सफियर की बात कर रहे हैं तो सॉलिड सफियर के केस में क्या है कि ये तो ग्राफ सेम रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड इंटेंसिटी सेम है। बट जो अगर हम इनर की बात करते हैं, इनर, तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो सॉलिड सफियर है कि उसके केस में सिर्फ ये इंटेंसिटी डिफर करती है कि इनसाइड भी इंटेंसिटी आती है, कि जिसकी वैल्यू जो है हमने क्या देखा कि E जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डैश, ठीक है। R डैश क्या था हमारा, जो हमारा अंदर का हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था उसका जो रेडियस था वो R डैश था, ठीक है जी। दैट मीन क्या है कि इंटेंसिटी जो है वो R डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब तक ये R डैश डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। क्योंकि ये लीनियरली रिलेशनशिप है तो यहाँ ग्राफ हमारा ऐसा आएगा। Okay, that is a difference between the graph for the spherical shell and spherical
सॉलिड बॉडी। ओके, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है जी। तो यहाँ मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि यहाँ क्या है मेरा ये क्या है, मेरा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने बनाई है मैंने, और ये मेरा इसका ओ क्या है, इसका ये सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसका ये रेडियस है आर। ओके, तो यहाँ क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और यहाँ जाके मैक्सिमम वैल्यू है ई की, और यहाँ से क्या है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है आर। ओके, बट अगर आप इसको शेल के लिए रिप्रेजेंट करते हो तो शेल का ग्राफ जो है, जो मैंने पहले बनाया था, वो ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, अगर हम हमारा बनाते हैं, यहाँ शेल बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि ये सेंटर है। ओके, तो यहाँ क्या है, हमारी आर है, ठीक है, यहाँ से ही हमारी जो ई की वैल्यू है वो आती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है कि ई की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ जो है वो ऐसा है। तो ये जो डिफरेंस आता है हमारा ग्राफ में, ठीक है, यू कैन सी कि यहाँ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा, दैट इज इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब ये सॉलिड स्फीयर का ग्राफ है, ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास शेल का ग्राफ है, स्फेरिकल शेल का। तो यहाँ कोई भी हमारे पास ग्राफ नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। So this is the difference, major difference between the graph of solid sphere and shell. Okay, तो यहाँ हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन आता है सॉलिड स्फीयर के लिए, और यहाँ हमारे पास ग्राफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एंड इन माय अपकमिंग वीडियो आई एम again come with the next application of Gauss law, which is of spherical of sheet, uniformly charged sheet। एंड उसके लिए फिर हमारे चैनल को देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।